Shah from C. Today I am going to teach you another important lesson of English grammar, the sentence and WH family in details. First, I am going to define the sentence. A set of words expressing a statement, a question or an order usually containing a subject and a verb is called sentence. In written English, sentences begin with a capital letter and end with full stop, a question mark or an exclamation mark. सेंटेंस को हम वाक्य भी कहते हैं, शब्दों का समूह जो किसी कथन, प्रश्न या आज्ञा को दर्शाए और अक्सर सब्जेक्ट और वर्ब के साथ प्रयोग हो उसे वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस को जनरली हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं और उसके एंड में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं। और इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, मॉडल्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। Without knowing them, you can never be able to understand passive voice and narration, which are the very important chapter of English grammar. इसको समझे बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, मॉडल, सेंटेंस को समझे बिना आप कभी भी पैसिव वॉइस और नरेशन में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। द सेंटेंस, वाक्य, letters like A, B, C, X, Y, Z or Z are small letters. You know that there are 26 capital letters and 26 small letters. These are the smallest unit of sentence, letters. And then letters make words like A for apple, B for boy, Z or Z for zebra or zebra. Then words make sentence like I eat an apple. Now look, 1, 2, 3, 4 words are there. And then sentence make a paragraph. If I write a paragraph on apple, then I have to use many lines, many sentences. Now look the sentence. There are 5 kinds of sentence in English. First one is assertive sentence or general statement sentence. First one is assertive sentence or general statement sentence. Statements are the sentences in which subject is present and generally comes before the verb. मैंने कहा assertive sentence वो होते हैं, इंग्लिश में 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में बता रहा हूँ assertive sentence, और इसे जनरल स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता तो है पर जनरली ये सब्जेक्ट वर्ब से पहले आते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, राम लर्न्स इंग्लिश। लुक हियर, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस एग्जाम्पल अगेन। राम लर्न्स इंग्लिश। हियर सब्जेक्ट इज राम, लर्न्स इज वर्ब, इंग्लिश एंड देयर इज फुल स्टॉप। और इस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। इट मींस राम इंग्लिश सीखता है। ही डजंट टेल लाइज। ही डजंट टेल लाइज, वो झूठ नहीं बोलता। अगेन सब्जेक्ट इज he and does is helping verb, tell is main verb. तो पहले subject आ रहा है, फिर verb, फिर object. So this is also, वह झूठ नहीं बोलता, this is also assertive sentence. और इसके 2 पार्ट होते हैं, सब पार्ट, positive and negative, you all know it. Virat played cricket. Virat played cricket. Again, actually it is a past tense, PT1, but Virat is subject, played is second form and cricket is object. There is full stop. विराट क्रिकेट खेला। He didn't score a century. He didn't score a century. उसने शतक नहीं बनाया। तो again it's a negative in past but it is also assertive sentence, statement sentence because subject पहले आ रहा है फिर verb आ रहा है। And last में full stop. Radha will come tomorrow. Radha will come tomorrow. Again, Radha is a subject, will is help, modal verb or helping verb. Come उसके बाद आ रहा है and there is a full stop at the end और अंत में full stop. She won't disturb you. Will not का contraction won't होता है। अगर हम कहें she will not come और she will not disturb you तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा, contraction होगा won't. She won't disturb you. वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो अगेन सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब एंड देयर इज फुल स्टॉप।
so it becomes a assertive sentence. I hope you must have understood the assertive sentence. Now second one is interrogative sentence. Second one is interrogative sentence. It is also called question sentence. Any question that asks a question, any sentence which asks a question is called interrogative sentence. It is divided in 3 parts. इसको interrogative sentence को 3 parts में बांटा गया है. First one is which starts with verb. Any question sentence, interrogative sentence which starts with verb, जिसमें verb पहले आ जाए तो ये question बना देता है. Such questions can be answered in yes or no. ऐसे सेंटेंस क्वेश्चंस का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं. और इसे बनाने के लिए आपको 27 हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत है, लाइक डू, डज, एम, इज, आर, हैव, हैज, डिड, वाज, वर, कैन, कुड. और जितने मॉडल्स हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको 16 मॉडल वर्ब्स भी पढ़ाए थे, तो ऑल द हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑल द मॉडल वर्ब्स equal to 27. 11 helping verbs I have just told you and 16 model verbs which I have taught you in last video. मेरे 16 models के वीडियो में आप देखिए, अगर if you have not watched that video, तो 27 helping verbs ये जब भी किसी भी सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे तो वो क्या बनाएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा. और ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमें हाँ या ना, या तो विल आंसर इन yes और no. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर रिमूव डज, राम लर्न्स इंग्लिश, अगर ये सेंटेंस हो, सब्जेक्ट राम है, हम इससे पहले हम डज ले आते हैं, तो डज राम लर्न इंग्लिश, और देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. इसका मतलब क्या राम इंग्लिश सीखता है. अगर हम डज को हटा दें, राम लर्न्स इंग्लिश, तो राम इंग्लिश सीखता है. हमने डज लगा दिया, डज राम लर्न इंग्लिश, अगर डज आ गया तो ऐसी यहां नहीं लगेगा, तो डज राम लर्न इंग्लिश, तो क्या राम इंग्लिश सीखता है. नाउ इट बिकम्स अ क्वेश्चन, इट हैज टू बी आंसर्ड इन यस और नो. अब इसका उत्तर या तो हाँ में होगा या ना में. यस राम लर्न्स इंग्लिश, या नो राम डजंट लर्न इंग्लिश. अब देखिए सेकेंड सेंटेंस, डजंट ही टेल लाइज, डजंट ही टेल लाइज, क्या वो झूठ नहीं बोलता है. अब फिर से नेगेटिव में आ गया, पर डज पहले आ गया सब्जेक्ट से पहले, तो ये क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है. इट मींस क्या वो झूठ नहीं बोलता है, तो हम बोलेंगे यस ही टेल्स लाइज, नो ही डजंट टेल लाइज. अब देखिए पास्ट में डू डज का पास्ट डिड हो जाता है, तो डिड विराट प्ले क्रिकेट. जब भी हम डिड का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. व्हेनेवर वी यूज डिड इज द पास्ट टेंस, सो वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ऑलवेज रिमेंबर. तो डिड विराट प्ले क्रिकेट, क्या विराट क्रिकेट खेला था. नाउ इट हैज टू बी आल्सो आंसर्ड इन यस और नो. इसका उत्तर भी हाँ या ना में होगा. यस विराट प्लेड क्रिकेट, या नो ही डिडंट प्ले क्रिकेट. अभी देखिए नेगेटिव, डिडंट ही स्कोर अ सेंचुरी, डिडंट ही स्कोर अ सेंचुरी. फिर हमने क्या किया, डिड पहले ले आया, नेगेटिव फॉर्म है. क्या उसने सेंचुरी नहीं बनाया, तो इसका भी उत्तर होगा आंसर वेदर इन यस और नो. यस ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, हाँ उसने सेंचुरी बनाई. नो ही डिडंट, ये तो है नेगेटिव में दोबारा रिपीट हो जाएगा. नो ही डिडंट स्कोर अ सेंचुरी, और डिड लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, डिड नहीं लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे पास्ट में. विल राधा कम टुमारो, उसी को था राधा विल कम टुमारो, हमने विल को सब्जेक्ट राधा से पहले ले लिया. विल राधा कम टुमारो, क्या राधा कल आएगी, तो इसका भी उत्तर होगा यस शी विल कम टुमारो, हाँ वो कल आएगी. नो शी वोंट कम टुमारो, नहीं वो कल नहीं आएगी. अब नेगेटिव देखिए, वोंट शी डिस्टर्ब यू, लॉट का बताया था, कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है. वोंट शी डिस्टर्ब यू, क्या वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी. अगेन you will answer whether in yes or no. Yes she will disturb you, no she won't disturb you. So हमने देखा सेम assertive sentence को हमने verb को पहले लाकर we have formed a question and such questions can be answered in yes or no. जब मैं आगे आपको passive voice और narration की क्लास दूंगा तो you must know these things.
parts of speech, tense, modals, and sentences. Without knowing them, we'll never be able to understand passive voice और narration. Passive voice और narration आप कभी समझ ही नहीं सकते बिना इन चीजों को अच्छी तरह learn किए हुए. This is, I hope you must have understood. Now look, interrogative first हमने पार्ट किया. I told you it is divided in 3 parts. अब हम second पे जा रहे हैं. Second one is it has rising intonation in spoken English. इसका प्रयोग सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है. It has rising intonation. Intonation होता है टोन का ऊपर नीचे जाना. तो इसमें राइज होगा. लास्ट में राइज होने से ही क्वेश्चन हो जाता है. जैसे हम कई बार कहते हैं यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट. अब देखिए हम सब्जेक्ट यू को पहले ला रहे, आर वर्ब हेल्पिंग वर्ब और गोइंग मेन वर्ब बाद में आ रहा है. तो इट मींस आप बाजार जा रहे हो. अब टोन देखिए, ये जो टोन है, टोन से इट बिकम्स अ क्वेश्चन. वैसे ये रूल हो रहा है असर्टिव का यूज, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है और फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन टोन से ये क्वेश्चन बन जाता है. फॉर एग्जांपल इफ आई से राम लर्न्स इंग्लिश, what did I say? Ram learns English. Now English, what did I do? मैंने टोन को ऊपर कर दिया, राइज कर दिया, तो ये क्वेश्चन बन गया. इट मींस राम इंग्लिश सीखता है. अगर मैं इसी को बोलूं राम लर्न्स इंग्लिश, तो इट बिकम्स अ असर्टिव सेंटेंस. देखिए मेरे टोन राम लर्न्स इंग्लिश, तो ये हो गया राम इंग्लिश सीखता है. अगर मैं राम लर्न्स इंग्लिश, तो इट बिकम्स अ क्वेश्चन. क्वेश्चन मार्क अगर कोई देखेगा कि ये क्वेश्चन मार्क कैसे लगा दिया, बट इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टोन. टोन राइज होने से, राइजिंग फॉलिंग टोन होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश फोनोलॉजी में मैंने बताया भी होगा आपको. राम लर्न्स इंग्लिश, इट्स अ असर्टिव. अगर हम टोन चेंज कर देंगे, राइज कर देंगे, फॉलिंग टोन था इसलिए असर्टिव हो गया. राम लर्न्स इंग्लिश, राम इंग्लिश सीखता है, तो इसका उत्तर भी इसी में यस या नो में. यस ही लर्न्स और नो ही डजंट लर्न. He doesn't tell lies. No, he doesn't tell lies. वो झूठ नहीं बोलता है. अब it becomes again question. विराट played cricket. विराट played cricket. तो it becomes a question. विराट क्रिकेट खेला था. He didn't score a century. He didn't score a century. क्या उसने सेंचुरी नहीं बनाई? Radha will come tomorrow. राधा कल आएगी. Now come to the third one. Third one is, it's the third part of interrogative sentence, which begins with WH family words. There are 16 WH family words. What, when, where, why, how and others. अभी मैं लास्ट में आपको डिटेल में इसको सिखाऊंगा आज. ये भी मैं WH family. Most of the students don't know how many WH family words are there. जैसे मैंने बताया yes no questions बनाने के लिए you need only 27 helping verbs. अब ये पूरी दुनिया, पूरी इंग्लिश की दुनिया में जितने yes no questions बनते हैं वो 27 helping verbs से बनते हैं. इसलिए पूरी दुनिया में जितने WH family के questions बनते हैं वो सिर्फ 16 WH family words से बनते हैं, जो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको इसी वीडियो में. फॉर एग्जाम्पल, Where does Ram learn English? अब देखो, अगर हमने कहा Ram learns English, तो राम इंग्लिश सीखता है. इट्स असर्टिव. हमने इसमें does लगा दिया अगर, तो does Ram learn English, तो ये फर्स्ट हो गया इंटरोगेटिव का yes no वाला क्वेश्चन. क्या राम इंग्लिश सीखता है? अब हमने उसमें WH फैमिली ऐड कर दिया सबसे शुरू में. तो where does Ram learn English? Now you can't just answer in yes or no. You have to give full explanation. आप इसको हाँ या ना में सिर्फ उत्तर नहीं दे सकते, आपको पूरा आंसर देना पड़ेगा कि राम इंग्लिश कहाँ सीखता है. तो राम लर्न्स इंग्लिश एट सी, राम सी में इंग्लिश सीखता है. और wherever he learns, आपको you have to answer. अब why doesn't he tell lies? पहला क्या था? पहला था he doesn't tell lies, तो असर्टिव था वो. जब हमने does को पहले ले आए, तो doesn't he tell lies, क्या वो झूठ नहीं बोलता है? तो ये yes no questions हो गया. अब हमने इसमें why भी ऐड कर दिया. Why doesn't he tell lies? वो झूठ क्यों नहीं बोलता? तो you have to explain कि what is the reason why he doesn't tell lies. आपको रीजन देना पड़ेगा. Which sport did Virat play? मैंने बोला did आएगा तो past tense हो जाएगा. Which आ गया कौन सा. Which sport did Virat play? विराट ने कौन सा स्पोर्ट खेला? तो जो भी आंसर है, विराट played cricket or whatever. How many runs he scored? How many, कितने, जिसको हम गिन सकते हैं. How many runs he scored? उसने कितने रन्स बनाए? He scored 50 runs or 80 runs, whatever. We have to answer. फिर देखिए, when will Radha come?
तो will राधा come, क्या राधा आएगी? Now we have added WH family. When will राधा come? राधा कब आएगी? Now we have to answer. Radha will come tomorrow, or Radha will come day after tomorrow, or Radha will come next week or next month. So we have to explain it. We just can't say that yes or no. ये yes no वाले questions नहीं होते हैं. Now interrogative is done. अब देखिए third. फर्स्ट हो गया हमारा assertive sentence, सेकंड हो गया इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव क्या एक्सप्लेन यू 3 पार्ट्स, तीनों पार्ट्स मैंने किया. अगर आपको कंफ्यूजन होती है दोबारा से ये वीडियो देखिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज अ पिलर. विदाउट नोइंग देम यू कांट मेक कॉन्वर्सेशन. आप कॉन्वर्सेशन तो कर ही नहीं सकते. यू कांट फॉर्म ए क्वेश्चन. कोई क्वेश्चंस नहीं बना सकते. एंड विदाउट नोइंग क्वेश्चंस हाउ कैन यू आंसर तो इट्स वेरी इंपॉसिबल. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. So third one is imperative sentence. Any form of the verb which expresses order, request, advice, warning and instruction are called imperative sentence. Imperative sentence generally order को दिखाता है, request को दिखाता है, advice को दिखाता है, warning को दिखाता है और instruction को दिखाता है. जनरली इसमें जो सब्जेक्ट है दैट इज हिडन, छुपे होते हैं. जैसे हम किसी से बात करते हैं, हम कहते हैं कम हियर. अब सामने है तभी हम बोलेंगे तो कम, तो यू जो है दैट इज हिडन हियर. तो कम हियर, यहां आइए, ओके, इधर आओ. तो ये एक ऑर्डर को दिखाता है. जैसे देखिए गो. गो इज द स्मॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट सेंटेंस ऑफ इंग्लिश. सबसे दुनिया का अगर सबसे छोटा सेंटेंस इंग्लिश का वो है गो. मैं बोलूं गो, इट मीन्स मैं किसको बोलूंगा? कोई सामने होगा. यू गो, आप जाओ. तो यू इज हिडन इन इंपेरेटिव, हम सीधा बोलेंगे गो, आप मीन्स जाओ. ये सबसे छोटा सेंटेंस है इंग्लिश का. और इसको हम ऐसे बोलते गो अवे, गो अवे या गो अवे. मैंने बताया था ब्रिटिश अमेरिकन लोग ओ साउंड्स को आउ में बोलते हैं. हम लोग बोलते हैं मोडल, MOD है, वो बोलेंगे माउडल. हम बोलते हैं जियो गो, ब्रिटिश अमेरिकन बोलते हैं जियो गो. हम बोलते हैं NO नो, वो बोलते हैं NO नो. सो गो और गो अवे. इट शोज ऑर्डर. ये किसको दिखा रहा है? ये ऑर्डर को दिखा रहा है. कोई हमसे छोटा हो तो हम उसको बोल सकते गो अवे. नेक्स्ट देखिए, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज सिट डाउन. तो इट शोज रिक्वेस्ट. हम यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं. प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनिए. बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो. डोंट बी केयरलेस, लापरवाह मत बनिए. तो दीज टू सेंटेंस शोज एडवाइस. हाँ, इसको भी ध्यान रखना है. इंग्लिश में एक होता है ADVICE, इसे एडवाइस पढ़ते हैं. वीक और एडवाइस, ये नाउन है, इसका मतलब है तो सलाह. अगर ADVI यहाँ की जगह S आ जाए तो उसे पढ़ते हैं एडवाइस. उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, इट बिकम्स अ वर्ब. वो वर्ब का काम करता है. आई एडवाइज हिम, और S हो जाएगा और प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगा. मैं उसे सलाह देता हूँ. और अगर ये नाउन होगा तो आई गिव हिम एडवाइस, स साउंड आ जाएगा और स्पेलिंग भी चेंज हो जाएगा. सी की S की जगह C हो जाएगा. सो बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो. डोंट बी केयरलेस, ये एडवाइस दी जा रही है तो इट बिकम्स अ एडवाइस. माइंड, अब गौर करिए कहीं सब्जेक्ट दिखने का. माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, ये वार्निंग को दिखा रहा है. कोई फालतू बोलता है तो हम कहते हैं यार तू जुबान पे लगाम दे, हाँ, अपनी जुबान संभाल के बात करिए. हम बोलेंगे माइंड योर लैंग्वेज. सो इट्स अ वार्निंग. ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमेशा सड़क की दाईं तरफ चले, सॉरी बाईं तरफ चले. तो इट शोज इंस्ट्रक्शन, इट शोज इंस्ट्रक्शन. फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, a sentence that expresses wish, blessing and others. Optative sentence is a sentence which expresses wish, desire, blessing and others. ये wish को दिखाता है, blessing को दिखाता है. For example, इसमें subject नहीं होते. Good morning, good morning. अब ये हमने देखा exclamatory sign, इसे exclamatory sign कहते हैं.
अगर छोटा वर्ड्स है, फ्रेजेस है, तो हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करेंगे। अगर बड़ा सेंटेंस है, देखिए मे हिज सोल गेट इटर्नल पीस, हमने यहां पर फुल स्टॉप लगाया। गुड नाइट, हैप्पी दिवाली, मैरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू, दोबारा बोलो। गुड मॉर्निंग, ये विश है। गुड नाइट, ये भी विश है, वी बिड समबडी गुड नाइट, वी विश समबडी गुड मॉर्निंग। हैप्पी दिवाली, वी विश दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे हिज सोल गेट इटर्नल पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसकी आत्मा को शांति मिले। नाउ फिफ्थ वन इज exclamatory sentence. It expresses a strong feeling of surprise, pain, admiration, and exclamatory sentences generally starts with what and how. Exclamatory sentence generally starts with what and how. ये strong feeling को दिखाता है, बहुत ज्यादा हैरानी, परेशानी, दुख। और ज्यादातर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ से शुरू होता है। अगर आप क्रिकेट देखते हो, नहीं कहते व्हाट अ कैच, व्हाट अ फील्डिंग, तो वहां हैरानी प्रकट की जा रही, सरप्राइज को दिखाया जा रहा है, वो कोई क्वेश्चन नहीं। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, नहीं कहते कोई बड़ी आदमी, ग्रेट लोग हमसे मिल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कितना बढ़िया खुशी की बात। व्हाट अ लवली डे इट इज, आज कितना बढ़िया दिन है। हाउ स्टूपिड ही इज, ये कितना स्टूपिड है। कई लोग क्वेश्चन मार्क भी लगा देते, बट बोथ आर राइट। आप उसको एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा सकते हैं क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मैंने एक्सक्लेमेशन में बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8वां है। हाउ डिलाइटफुल हर मैनर्स आर, हाउ डिलाइटफुल हर मैनर्स आर, यार इसका स्वभाव कितना अच्छा है। तो ये खुशी को, हैरानी को दिखा रहा है कि कितना बढ़िया आजकल कैसे, कहां मिलते हैं ऐसे लोग। हर्रा, he has cracked UPSC exam, हर्रा जो है बहुत ज्यादा खुशी को दिखाता है। ब्रिटिश में इसे हर्रा बोलते, अमेरिकन में इसे हर्रे बोलते, और हमारे इंडिया में हुर्रे बोलते हैं। हाँ, तो हर्रा और हर्रे, he has cracked UPSC exam, उसने UPSC एग्जाम क्लियर कर लिया। इट्स अ वेरी इट्स अ गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज। तो हैरानी को दिखा रहा है, खुशी की। alas, he met an accident, alas जो है दुख को दिखाता है कि उसकी दुर्घटना हो। Now we have learned 5 kinds of sentences. First one is assertive sentence, second one is interrogative sentence, third one is imperative sentence, fourth one is optative sentence, and fifth one is exclamatory sentence. And we must know them, otherwise we'll have to face problem in understanding, to understand voice and narration, which are the very very important chapter of grammar. Now next, एक ही question tags. Question tags क्या होते हैं? Whenever we make a statement, generally we put a tag after it for confirmation. जैसे हम कुछ भी, तो question tag क्या होता है? When the statement is positive, we use negative tag, and vice versa. Vice versa होता है इसका उल्टा, उतना ही सच है। मीन्स अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव लगेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव लगेगा। अगर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, व्हाट डिड आई से, आई टीच इंग्लिश, तो मैं टैग लगाऊंगा P1 है, डोंट आई, डोंट आई। अब सेंटेंस पॉजिटिव, आई टीच इंग्लिश, मैंने नेगेटिव क्या लगाया, सॉरी टैग क्या लगाया, नेगेटिव, डोंट आई। अगर मैं कहूं आई डोंट टीच मैथ्स, क्या बोला मैंने, आई डोंट टीच मैथ्स, अब नेगेटिव है तो मैं टैग लगाऊंगा पॉजिटिव, डू आई। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम लर्न्स इंग्लिश, डजंट ही, राम इंग्लिश सीखता है, क्या नहीं सीखता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस पे हमने नेगेटिव टैग लगाया। ही डजंट टेल लाइज, डज ही, अब नेगेटिव सेंटेंस था, हमने पहले भी किया, ही डजंट टेल लाइज, वो झूठ नहीं बोलता, डज ही, क्या बोलता है। विराट प्लेड क्रिकेट, डिडंट ही, विराट प्लेड क्रिकेट, डिडंट ही। अब देखना, विराट क्रिकेट खेला, पॉजिटिव है, नेगेटिव सॉरी टैग क्या लग गया, नेगेटिव, डिडंट ही। ये भी बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं, एंड इट इज यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, कन्वर्सेशन, इन जनरल टॉकिंग, हम बहुत बोलते हैं अपने आप को, टू शो दैट वट एवर आई एम टेलिंग इज वेरी राइट, वेरी ट्रू, तो वी पुट क्वेश्चन टैग। He didn't score a century, did he? He didn't score a century, did he? उसने सेंचुरी नहीं बनाई, क्या बनाई उसने,
Radha will come tomorrow, won't she? Radha will come tomorrow, won't she? राधा कल आएगी, क्या नहीं आएगी? She won't disturb you, will you? She won't disturb you, sorry, will she? वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्या करेगी? I am a teacher, aren't I? I am a teacher, aren't I? मैं एक टीचर हूं, क्या नहीं हूं? हाँ, ये aren't I ही लगेगा इसमें। और अगर आप इंपेरेटिव के लिए यूज कर रहे हो, जैसे हम कहते हैं इंप्रूव योरसेल्फ, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसमें आप दोनों से लगा सकते हैं, विल यू या वोंट यू, टैग। एंड देन कम क्वेश्चन फ्रॉम वर्ब्स। मैंने बताया था क्वेश्चन फ्रॉम वर्ब्स, देयर आर 11 हेल्पिंग वर्ब प्लस 16 मॉडल वर्ब्स। ये जब भी इनमें से कोई भी अगर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा तो ये क्या क्वेश्चंस में बदल जाएगा। और पूरी दुनिया में, इंग्लिश की पूरी दुनिया में जो यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, अभी मैंने बताया भी, आई जस्ट टोल्ड यू, ये सब इन्हीं से बनेंगे। लाइक डू, डज, एम, इज, आर, हैव, हैज, डिड, वाज, वर, had, can, could, will, would, used to, shall, should, ought to, must, need, dare, may, might, have to or have got to, has to or has got to, had to। और जितने टेंसेस है, जैसे मैंने 21 टेंसेस आपको बताए, अगर नहीं आपने देखा तो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। जो 21 टेंसेस में जो पहला टेंस है P1 और P2, उसमें हम डू डज का प्रयोग करते हैं। अगर मैं कहूँ यू लर्न इंग्लिश, तो उसमें लगा डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हो? तो उत्तर आंसर यस या नो में होगा। अगर ही, शी, इट एनी नेम है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। डज राम लर्न इंग्लिश, अभी मैंने बनाया था। अगर यही पास्ट में हो जाएगा तो डिड में चेंज हो जाएगा। डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या आपने इंग्लिश सीखी? हाँ, अगर फ्यूचर में हो जाएगा तो कोई शैल विल आ जाएगा। विल यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखोगे? तो P1 और P2 में हम डू डज का प्रयोग करेंगे। PT1 और PT2 में डिड का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर में तो सब में विल आ जाएगा, विल शैल आ जाता है या कोई मॉडल्स। और P3 P4 में और P5 में हम एम इज आर का यूज करेंगे। जैसे आई एम अ टीचर, एम पहले आ गया, एम आई ए टीचर, क्या मैं टीचर हूं? पास्ट में वॉज आई ए टीचर, क्या मैं टीचर था? फ्यूचर में विल बी आई ए टीचर। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव हैज का यूज करते हैं, पास्ट में हैड का यूज करते हैं। और इसका कंट्रैक्शन भी पता होना चाहिए। कंट्रैक्शन का शॉर्ट फॉर्म, जैसे डू नॉट को हम डाउट पढ़ते हैं, डज नॉट को हम डजंट पढ़ते हैं, एम नॉट को हम एंड भी पढ़ते हैं, चाहे इज नॉट हो, एम नॉट हो, आर नॉट हो। इज नॉट को हम इजंट पढ़ते हैं, आर नॉट को हम आंट पढ़ते हैं, हैव नॉट को हम हैवंट पढ़ते हैं, हैज नॉट को हम हैजंट पढ़ते हैं, डिड नॉट को हम डिडंट पढ़ते हैं और लिखते भी ऐसे DIDN एपोस्ट्रोफी और टी आपने देखा होगा। was not को हम wasn't पढ़ते हैं, were not को हम weren't पढ़ते हैं, had not को हम hadn't पढ़ते हैं, cannot को can't पढ़ते हैं। वो तो आपने 16 model verbs में I have already explained you. Now I am going to teach you WH family words in details. There are 16 WH family words which are used in our day-to-day life, whether we write English, whether we speak English. First one is what. What means क्या? आप लोग जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? For things or profession. इसका यूज थिंग्स और प्रोफेशन के लिए यूज होता है। एक जो हमने या किया, अगर वो जितने हेल्पिंग वर्ब्स थे अगर वो पहले आ जाए, डू यू लर्न इंग्लिश, तो क्या आप इंग्लिश सीखते हो? तो उसका आंसर वी कैन आंसर इन यस और नो। इसमें वी हैव टू गिव डिटेल आंसर। यहाँ व्हाट का मतलब ऐसे नहीं होगा, इसका मतलब व्हाट डू यू डू हियर। अगर मैं कहूँ सो आई लर्न इंग्लिश हियर, या व्हाट डू यू टीच हियर, आई टीच इंग्लिश हियर, तो व्हाट पहले आ गया, तो ये क्या WH फैमिली वाला है। What are you? अगर हमने कहा What do you do here, तो मैं कहूँ I teach English here, तो ये एक्शन को बता रहा है। What are you? यहाँ पर अब यहाँ पर प्रोफेशन को बता रहा है कि मैं क्या हूँ, What is my profession? So आप ये कहते हैं What is your father? My father is an engineer. My father is whatever. तो what are you? तो I am a teacher. मैं टीचर हूँ, तो मैं बोलूँगा मैं एक टीचर हूँ। Second one is when. When means कब, and it is used for time. इसका यूज टाइम के लिए, जब भी when का यूज हो तो you have to tell the time. When do you wake up in the morning? I'm going to repeat. When do you wake up in the morning? आप सुबह
कितने बजे उठते हो? तो यू हैव टू आंसर आई वेक अप एट 4 o'clock और आई वेक अप एट 5 AM. थर्ड वन इज वेयर, मीन्स कहाँ. इट इज यूज फॉर प्लेस. इसका यूज प्लेस के लिए होता है. जब भी वेयर है तो समझिए वो प्लेस के बारे में पूछ रहा है. वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ. वेयर एवर यू लिव यू हैव टू आंसर. फोर्थ वन इज वाई. वाई मीन्स क्यों, फॉर रीजन. वाई जो है रीजन का. अगर आप हाउ और वाई के आंसर देने लगे तो यू विल बी अ ग्रेट पर्सन, यू विल बी अ ग्रेट इनोवेटर, साइंटिस्ट, academician. तो why means क्यों, for reason. Why do you teach English? Why do you teach English? आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो? I love teaching English. It's my passion as well as profession. ये मेरा पैशन भी है और प्रोफेशन भी है. फिफ्थ वन इज who और whom. कौन, who का ज्यादा आजकल यूज होता है. whom एक ओल्ड फैशन हो गया, बट वी मस्ट नो देम. who और whom, कौन. फॉर पर्सन, ये इसका सिर्फ पर्सन के लिए यूज होता है, इंसानों के लिए. हु इज योर आइडियल, आपके आदर्श कौन है? माई स्पिरिचुअल मास्टर इज माई आइडियल. हाँ, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड. हाँ. सिक्स्थ वन इज हुज. सिक्स्थ वन इज हुज. फॉर, इसका हिंदी मीनिंग होता है किसका. फॉर पोजीशन, जब भी हम संपत्ति की बात करते हैं तो हुज का प्रयोग करेंगे. हुज बुक इज दिस. आई एम गोइंग टू रिपीट. हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है? तो इट्स माइन, ये मेरी है, या इट्स योर्स. इसका हमेशा जो प्रयोग होगा ये पोजीशन के लिए होगा. अगर मैं हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, तो इट इज इट्स माइन, या इट्स हिज, इट्स हर्स, इट्स योर्स. जिसका भी होगा तो ये यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा. सेवेंथ वन इज विच. सेवेंथ वन इज विच, कौन सा. For person or things when choice is restricted as selection. For person or things when choice is restricted as selection. जब जहाँ choice की बात हो, ठीक है. Which is your favorite movie? Which is your favorite poem? Which is your favorite poem? आपकी favorite poem क्या, कौन सी है? हाँ? My heaven is my favorite poem. जो भी आपकी favorite poem है, तो बहुत सारी पोएम में से एक. Which of the applicants has got the job? Which of the applicants has got the job? किस एप्लीकेंट को नौकरी मिल गई, नहीं कहते. Which of you knows the modal verbs? आप में से कितने को किसको modal verb आता है, तो we use which. Which is your favorite color? Eighth one is how. इसकी मीनिंग होती कैसे. How means कैसे. It is used for method or way. इसका मेथड के लिए. हाउ डू यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आते हो. आई कम हियर बाय कार, आई कम हियर ऑन फुट, जैसे आते हो. हाउ डू यू टीच इंग्लिश. हाउ डू यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे पढ़ाते हो. आई टीच इंग्लिश थ्रू लेक्सिस, फोनोलॉजी एंड ग्रामर. ये मेरा मेथड है कि लेक्सिस पहले पढ़ाता हूँ, फिर फोनोलॉजी और ग्रामर. नाइन्थ वन इज हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग इज यूज फॉर ड्यूरेशन. इसको हिंदी में कहते हैं कितनी देर, टाइम के लिए, टाइम ड्यूरेशन. हाउ लॉन्ग डू यू रीड न्यूज़पेपर, आप कितनी देर न्यूज़पेपर पढ़ते हो. तो आई रीड न्यूज़पेपर फॉर एन आवर, आई रीड न्यूज़पेपर फॉर 2 hours, व्हाटएवर. हाउ लॉन्ग डू यू प्रे टू गॉड. आई प्रे टू गॉड फॉर 20 minutes और आई प्रे टू गॉड फॉर half an hour. 10th one is how far. How far means कितनी दूर. far जो है, it is very far away. It is far away. How far, कितनी दूर. For distance, ये distance के लिए यूज होता है. How far your house is from here. How far your house is from here. आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, तो it is 10 kilometers away or 5 kilometers away. You have to answer. 11th one is how many. How many, वैसे हिंदी कितने होता है, बट इट्स कंफ्यूजिंग. इंग्लिश में ज्यादा समझिए तो ज्यादा बेटर है. हाउ मेनी फॉर नंबर्स. एक्चुअली नाउन होते हैं, काउंटेबल नंबर होता है, अनकाउंटेबल नंबर होता है. काउंटेबल लाइक मार्कर इज काउंटेबल नंबर्स, तो इसका प्लूरल भी होगा. मार्कर, मार्कर्स, पेन, पेन्स, वॉच, वॉचेस. और कुछ होते हैं अनकाउंटेबल, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते, लाइक वाटर, मिल्क. दीज आर अनकाउंटेबल नंबर्स. ये अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं. तो हाउ मेनी हम नंबर्स के लिए यूज करेंगे. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली. आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, गिन सकते हैं. देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली. और
how many students are there in this class? So there are 20 students in this class, there are 25 students in this class. तो जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए हम how many का यूज करेंगे. Now look the 12th one. 12th one is how much. 12th one is how much. अब वैसे हिंदी में इसका भी कितना मीनिंग होता है, but it is used for quantity. Quantity जिसको हम गिन नहीं सकते, which we cannot count. How much faith do you have in God? How much faith do you have in God? आपको भगवान पर कितना विश्वास है, आप गिन नहीं सकते. How much faith do you have in God? Answer: I have sublime faith in God and myself. I have sublime faith in God. मुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास. Sublime means पूर्ण होता है. 13th one is how often or how many times. How many times means कितनी बार. For frequency, इसका प्रयोग frequency के लिए होगा. How often do you take meal in a day? Or you can also say how many times do you take meal in a day? आप एक दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? I take meal twice a day or thrice a day. जितनी बार आप खाते हैं, you can answer. 14th one is what kind of, what type of, what sort of. इन तीनों का मतलब एक ही होता है, किस तरह की. ये for variety, it is used for, ये variety दिखाने के लिए यूज होता है. What kind of कह लो या what type of कह लो, what sort of कह लो. What kind of person are you? What kind of person are you? आप किस तरह के व्यक्ति हैं? I'm honest, hardworking and creative. What sort of books do you like to read? What sort of books do you like to read? आपको किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है? I like to read fiction, non-fiction. 15th one is at what place? At what place? किस जगह पर? For exact place. Exact जगह के लिए इसका यूज होता है. At what place Red Fort is situated? At what place Red Fort is situated? जो लाल किला है कहाँ पर है? It is just before चांदनी चौक, बिल्कुल चांदनी चौक के सामने है. 16th one is at what time? At what time? किस वक्त? टाइम की बात है. For exact time, किस वक्त की बात है? At what time? Exact. अगर हम कहें when do you wake up, हम कहें I wake up early in the morning. पर आपसे कोई पूछ ले at what time do you wake up in the morning, तो you have to say I wake up at 4:30 a.m. or 5 a.m. So at what time do you leave for office? Actually exact time होता है when you leave for office, and there are many works we do at on time, in time. So at what time do you leave for office? आप किस वक्त ऑफिस के लिए निकलते हो? तो I leave for office at 9 a.m. or 10 a.m. or whatever, whenever you leave for office. So I have explained you all the sentences, 5 sentences plus all the WH family words. Now there is time to bid you goodbye. In my next video, I'll teach you another important lesson of grammar, that is voice. I'll see you soon on the same channel when God yearns. And thank you very much for watching this video.